پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ملک ندیم اور سہیل کوثر کا احسن اقدام۔ پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ PPNE اور پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن PJA کے مابین اہم معاملات کے حوالے سے زوم کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس کا مقصد پاکستانی صحافیوں کے لیے PPNE اور مالمو انٹرنیشنل اسکول کی جانب سے صحافتی تربیتی پروجیکٹس کے حوالے سے PJA کی معاونت حاصل کرنا تھا۔ سویڈن کے معروف سماجی ادارے پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ اور پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے مابین خصوصی زوم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت سویڈن سے PPNE کے سربراہ زبیر حسین نے کی۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے زبیر حسین کا کہنا تھا کہ ہمارے ادارے کا مقصد فقط پاکستان کا مثبت چہرہ یورپ میں متعارف کروانا ہی نہیں، بلکہ ہم پاکستان بھر میں بھی پاکستانیت کو تقویت بخشنے کے لیے کوشاں ہیں، اور جب ملکی سطح پر کسی بھی نیک مقصد کا ارادہ کیا جاتا ہے تو صحافت کا اس میں اہم کردار ہوتا ہے۔ دور حاضر میں جہاں پوری دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف گامزن ہے، وہاں صحافت کا معیار بھی منفرد ہو چلا ہے۔ اس لیے وطن عزیز کے صحافیوں کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ صحافتی دنیا میں جدت کے تقاضوں سے آشنا ہو کر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بنائیں، کیونکہ اب صحافت فقط کسی ایک علاقے، شہر یا پھر ملک تک محدود نہیں، بلکہ سوشل میڈیا نے تمام تر معلومات کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا ہے، جس میں صحافت کا معیار بھی دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کے مطابق ہونا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ زبیر حسین کا کہنا تھا کہ ہمارے ادارے کی جانب سے پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن سے منسلک صحافیوں کے لیے ہم لا رہے ہیں سویڈن سے آن لائن مفت تربیتی ورکشاپ، جس کے ذریعے وطن عزیز کے صحافیوں کو دنیا بھر میں ہونے والے صحافتی تکنیک کے حوالے سے تربیت دی جائے گی اور ادارے کی جانب سے سند بھی جاری کی جائے گی۔ مذکورہ کانفرنس میں پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور ممبران کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی، جن میں ملک ندیم، سہیل کوثر، امین نقیبی، محبوب انصاری، راجہ یوسف، طارق عباسی، سلطان حسن بٹ، بیگم الوی، ساجد بٹو، عید محمد، بلال اکرم، سید ظفر عباس، سلیم رضا، شہزاد اسلم، معظم ملک، وسیم جیلانی اور دیگر شامل تھے۔ پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ کی جانب سے زبیر حسین، مبین حسین، اشفاق احمد، وردہ، مجیب خان، رخسانہ شیخ، عارف حسین، محمد سرور، تیمور عباس اور محمد حذیفہ نے شرکت کی۔ PPNE کی جانب سے کانفرنس میں چند اعلانات بھی کیے گئے، جن میں عید محمد کو PPNE براڈ کاسٹنگ کا پاکستان بھر کا چیئرمین نامزد کیا گیا اور کوئٹہ سے رخسانہ شیخ کو بلوچستان کا ترجمان نامزد کیا گیا۔ نہ صرف تعیناتیوں کے حوالے سے اعلان کیا گیا، بلکہ شرکاء کو یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ اپنا چینل PPNE نیوز بہت جلد لانچ کرنے جا رہا ہے، جس کی سربراہی عید محمد اپنی نگرانی میں کریں گے۔ میٹنگ کے اختتام پر تمام شرکاء نے اپنی آراء سے آگاہ کیا اور اس اقدام کو سراہا کہ PPNE اور PJA مل کر صحافیوں کی بے لوث خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ سر آپ لے لیں، ساجد بٹو صاحب کنٹینیو کریں۔ جی سر، ایسا ہے کہ شاید کوئی نیٹ ورک میں مسئلہ ہے، تو میں سر یہ کہ بس آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور زبیر حسین صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اس کے بعد پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے صحافیوں کے لیے بے لوث ان کی ہیلپ کا اور ان کی آنے والی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچا۔ تو دعا گو ہوں اللہ پاک سے کہ آپ بھی جو کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے جرنلسٹ کے حوالے سے، اللہ پاک آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے۔ بہت شکریہ سر۔ جی جی عید محمد صاحب ایسے کرتے ہیں کہ آپ جو ہے فیڈ بیک اپنے ساتھیوں کا بعد میں لے لیجیے گا۔ بہت سے ساتھی نے پہلی دفعہ جو ہے ورچوئل کانفرنس جوائن کی ہے تو ان کے لیے پرابلمس آ رہی ہیں، تو میرے خیال سے کہ ہم جو ہے معظم علی صاحب کو لے لیں، معظم علی صاحب کو۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اس طرح کے ہمارے جو ہے پروجیکٹس ہیں، اگر میں کنٹینیو کروں گا تو شاید ہمارے پاس ٹائم کم بچے گا۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے صحافت یا آپ کے پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ کولیبریشن یا ان کے لیے ہم اس طرح کا پروگرام لائیں کہ ہم صحافت کے اندر جدت کو کس طریقے سے منسلک کریں، صحافیوں کو کس طریقے سے پالش کریں۔ یہاں سے یورپ سے بہت سارے ادارے ہیں جو پاکستان میں فنڈنگ کرتے ہیں، بہت سے یورپ کے ایسے ادارے ہیں جو پاکستان کی جرنلزم کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس برج نہیں ہے جو یہاں کے ریسورسز کو پاکستان منتقل کرے۔ چونکہ عید محمد صاحب سے ہمارا جو ہے وہ ایک بہت اچھا جو ہے نا آپ سمجھیں کہ مراسم رہے، صحافت کے حساب سے بھی، دوستانہ ماحول میں بھی۔ تو عید محمد صاحب سے جب ہم نے اس چیزوں کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک خود کی جو ہے ایک نمائندہ جماعت ہے جو صحافیوں کے لیے بے لوث خدمت انجام دے کو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو آپ ہمارے صدر ہیں سہیل کوثر صاحب، ظفر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، شہزاد اسلم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ہماری طرف پاکستان
पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से। और मैं चाहूंगा 1 बाय 1 सबको 1-1 2-2 मिनट दिए जाएं, वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें 1 बाय 1 पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से। इनके एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट ला रही है, तो हमारी तरफ से तो हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं। हमारी वहाँ की लोकल टीम जितनी मजबूत होगी वो बहुत इफेक्टिव होगी। जी मोहम्मद साहब, हमारे साथ रुखसाना शेख साहब हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं। तो रुखसाना शेख साहबा क्वेटा से आप प्लीज कंटिन्यू करें, प्रेजेंट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर दिस अनाउंसमेंट। मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे एक्नॉलेज किया और अल्लाह ताला हमारे ये जो स्टेप्स हैं हम सब के लिए फायदेमंद। ऑर्गेनाइजेशन से जो सहाफती तंजीमें उनके साथ इनकी कोलैबोरेशन है और ये भी बिलोस पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं और सहाफती दुनिया में। जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक, चीनी की कीमतों के हवाले से क्रैकडाउन जारी। बेदिया रोड पर प्राइस चेकिंग की गई। ग्रोसरी स्टोर पर चीनी की ओवर चार्जिंग पाई गई। 115 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी की फरोख्त जारी थी। चीनी के मुकर्रर करदा कीमत 85 रुपए फी किलो है। 20,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। स्टोर को सील कर दिया गया। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर कैंट सिशान नसरुल्लाह रांझा ने की। चीनी की कीमतों के हवाले से क्रैकडाउन जारी रहेगा। चीनी की कीमत पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज ने चीनी की ओवर चार्जिंग पर जबरदस्त क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत कर रखी हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर के इलाके वहगा टाउन से, जहां पर गैर कानूनी पेट्रोल मिनी मशीनें लगी हुई हैं। हिफाजती इकदाम न होने की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम अंसारी की इस रिपोर्ट में। जी नईम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए लाहौर के वागा जोन की, तो वागा जोन के मुख्तलिफ इलाके जिसमें श्रीपुरा रोड, अहमद टाउन, हांडू और मनावा शामिल हैं। इन इलाकों में 100 से ज़ायद गैर कानूनी पेट्रोल मशीनें लगी हुई हैं। हिफाजती इक़दाम ना होने की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, लेकिन मुख्तलिफ इदारे जिसमें सिविल डिफेंस, वागा जोन और मनावा थाना शामिल हैं, गैर कानूनी पेट्रोल मशीनें ख़त्म करवाने में पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए वागा जोन के इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर अरशद लोधी की, तो ज़राए के मुताबिक अरशद लोधी इन गैर कानूनी मशीनों से हज़ारों रुपए इकट्ठे करता है। वो अफसरान जो कि इन गैर गरीब लोगों के टैक्सों से ही सैलरियां लेते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में तलीमें दिलवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चंद पैसों की खातिर लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल देते हैं। वागा जोन के इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल मशीनें ख़त्म ना होना मुख्तलिफ दारों के लिए भी सवालिया निशान है। अगर बात की जाए DCO लाहौर मुदस्सर रियाज की, तो DCO लाहौर मुदस्सर रियाज की वाज़ेह हदायत के मुताबिक लाहौर भर में कोई भी गैर कानूनी पेट्रोल मशीनें नहीं लगेंगी, लेकिन DCO लाहौर मुदस्सर रियाज की रिट को चैलेंज करते हुए वागा जोन के इंस्पेक्टर अरशद लोधी और SHO मनावा ने चंद पैसों की खातिर लोगों की जिंदगियों के खतरों में डाल रखा है। जी खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदे राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल महकमा जंगलात के दफ्तर में जंगल का कानून लागू कर दिया गया। दफ्तरी अमला गायब, खाली कुर्सियां अफसरान का इंतजार कर रही हैं। दिन रात बंद कमरों में पंखे चलते नजर आते हैं। क्लर्क से अफसर तक सब सिफारशी बुनियादों पर तैनात हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून लागू। नूरशाह रोड, आरिफ रोड, पाकपतन रोड और तमाम नहरों से कीमती दरख्त गायब। महकमा जंगलात के अफसरान की मिली भगत से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महकमा जंगलात के दफ्तर में गंदे पानी के जोहर नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो रोजाना की बुनियाद पर डेंगू मच्छरों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत के साथ साथ कौमी खजाने का बेदरेर इस्तेमाल, दूसरी जानिब ये कोई जंगल या देहात नहीं है, ये महकमा जंगलात का दफ्तर है, जहां आपको गंदगी के ढेरों के साथ साथ गंदे पानी के जोहर नजर आ रहे हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि बंद कमरों में पंखे और लाइटें जल रही हैं। अवामी और समाजी हलकों ने कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सस्ता रमजान बाजार का दौरा। एजाज आलम ऑगस्टन, सूबाई वजीर इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर पंजाब। अजीज खान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चौधरी सलीम सादिक, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ओकाड़ा और टिकट होल्डर PP 189। आसिफ गुज्जर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिटी ओकाड़ा। राशिद गोरी, रहनुमा PTI। फैजान गुज्जर, रहनुमा PTI। मलिक मोहसिन रजा, रहनुमा PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर मोअज़्ज़िज़ कायदीन ने ओकाड़ा सिटी में कायम सस्ता रमजान बाजार का दौरा। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि रमजानुल मुबारक में अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों की सख्त निगरानी की जाए ताकि गरीब तबके को किसी मुश्किल का सामना ना हो।
चीनी, घी, दालें, बेसन और आटे की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी और मुकर्रर शुदा निर्खों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। ओकाड़ा में मुतअद्दिद मुकामात पर सस्ते बाजार कायम किए गए हैं जिनमें अशियाए ज़रूरिया कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के रमज़ानुल मुबारक में नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को जारी रखा जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि रमज़ान बाज़ारों में कोरोना वबा से मुतल्लिका SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत की जानिब गामज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अहमदपुर शर्किया का शहर पुल फारूकाबाद में रमज़ान का मुबारक महीना आते ही आटे की तरह अब चीनी, घी भी गायब। पुल फारूकाबाद के शहरी अपील कर रहे हैं AC अहमदपुर शर्किया DC बहावलपुर वज़ीर आला पंजाब से कि हमारे लिए कुछ आसानियाँ पैदा की जाएं और हमें रिलीफ दिया जाए। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मलिक साकिब। जी मलिक साकिब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया का शहर फरूखाबाद, जहाँ पे आटे की तरह चीनी भी गायब है, घी भी गायब है और शहरी जो हैं वो अपील कर रहे हैं AC अहमदपुर शर्किया से, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से कि हमारे लिए कोई चीनी का इंतज़ाम कर दें। बाकी कुछ शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि किस किस चीज़ की इनको मुश्किलात होती है। जी भाई बताएँ। चीनी भी बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं कि 100 रुपये मिलती पई, अगर मिल लेता पहले तो मिलती नहीं, तो घी की भी बहुत शार्टेंगे, अगर मिल ही वने तो 250, 260 तो 270 रुपया देने पे। हर चीज़ ब्लैक तो मिलती पई है। रमज़ान शरीफ के आने नाल बहुत ज़्यादा महंगाई थी कि मुनाफा को देना बहुत ज़्यादा नफा कराने की कोशिश करें। जी, जैसा कि आपने सुना है, शहरी का कहना है जो दुकानदार हैं वो मुनाफाखोर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाया जाए और ये भोली भाली जो आवाम है इनसे कुछ न कुछ हासिल किया जाए। जी, मुस्लिम लीग नून जिला शेखुपुरा के सदर साबिक MPA मोहम्मद आरिफ खान संधीला ने कहा है कि शहबाज पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की रिहाई हक और सच की फतह है। मुखालिफिन लंबे अरसे तक उन्हें जेल में रखने के बावजूद एक पाई की करप्शन भी साबित नहीं कर सके। उनके दामन शीशे की तरह साफ हैं। वो शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शरीफ की रिहाई हक और सच की फतह है। तो पाकिस्तान के अवाम आज भी मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की खिदमात को याद करते हैं। उनके वो सुनहरी दौर, ज़िंदगी बड़ी आसान थी, रोज़गार और हर आदमी को मुयस्सर था, और ये जो बेरोज़गारियाँ नहीं थीं, फिर उसके अलावा महंगाई नहीं थी, हर चीज़ सस्ती थी, ज़िंदगी बड़ी आसान थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आम इंसानों की ज़िंदगी बड़ी अजीरन बना दी है। तो कल जब मियां शहबाज शरीफ साहब की रिहाई का ऐलान हुआ तो पूरे पाकिस्तान में खुशी के शादियाने बजाए गए कि पाकिस्तान की हकीकी क़यादत जो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब की सूरत में मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल को फिर पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी और अवाम फिर वो जो ज़िंदगी की सहूलतें और आसाइशें हैं जो मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में अवाम को मुयस्सर थीं, जो पेट्रोल की सूरत में, सस्ती ज़रूरियात ज़िंदगी की सूरत में, तो इंशाअल्लाह वो सब कुछ फिर वो मुयस्सर होगा। तो मियां शहबाज शरीफ की रिहाई जो है ये एक सच्चाई की फतह है। तो उन्हें मुद्दतों, महीनों तक, सालों तक जेलों में रखा गया, लेकिन आज तक वो अदारे जो उन पे करप्शन के बड़े इल्ज़ाम लगाते थे वो एक पैसे का साबित नहीं कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आला अदालतों ने, हाई कोर्ट ने मियां शहबाज शरीफ साहब की रिहाई का परवाना जारी किया है, इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मुस्लिम लीग नून की दूसरे जो रफ़ाक़ा हैं, लीडर हैं, वो भी इंशाअल्लाह इसी तरह अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आएंगे। शेखुपुरा मुरीद के शहर की आबादी बंगला रोड पर कटी पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से एक और नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 दिनों के दौरान डोर फिरने से ये तीसरे शहरी के जख्मी होने का वाक़या है। बताया जाता है कि मोहल्ला गुलशन जफर का रिहायशी कपड़े का ताजिर 28 साला हसीब मोटरसाइकिल पर बंगला रोड मुरीद के शहर से गुजर रहा था कि अचानक कटी पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से जख्मी होकर गिर गया, जिसे फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुरीद के मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम करके उसकी जान बचा ली। 4 दिन के दौरान डोर फिरने का यह तीसरा वाक़या है जिसमें से यूसुफ नामी शख्स की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है, जबकि शहर और गिरदनवा में पतंगबाजी अरूज पर है।
शहरियों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और IG पुलिस पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शेखुपुरा बैसाखी मेले की तकरीबात के सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए 752 भारतीय सिख यात्रियों ने शेखुपुरा में गुरुद्वारा सच्चा सौदा का दौरा किया। सिख यात्री सख्त सिक्योरिटी में ननकाना साहिब से जब गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुंचे तो डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जुइया, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी फारूकाबाद जावेद चौहान, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मियां नज़ीर, महकमा औकाफ और जिला इंतजामिया के अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा में अपनी मजहबी रसूमात अदा की और पाकिस्तान में उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी, मजहबी मकामात की शानदार देखभाल और उनके लिए सिक्योरिटी और क़याम ताम के इंतजाम करने पर वफाकी सूबाई हुकूमतों और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सिख यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद वापस गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहिब चले गए, जहां वो मजीद एक रोज़ क़याम करेंगे। रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान डॉक्टर खुरम शहजाद ने मुख्तलिफ शहरों ताहिर पीर, रुकनपुर, सरदारगढ़, खानबेला, तरंडा, मोहम्मद पनाह, लियाकतपुर और खानपुर के रमज़ान बाज़ारों का दौरा किया, जहां इंतजामात का जायजा लिया और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत जारी की। उन्होंने सब्जी, फलों, अशियाए खुरोनोश, मशरूबात, आटा और चीनी के स्टॉल चेक किए। इस मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सस्ता रमज़ान बाजार में चीज़ों की वाफर मिक़दार मुहैया करने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रमज़ान बाजार के अलावा आम मार्केटों में भी मुकर्ररा निर्खनामे चेक किए जा रहे हैं ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों या महंगे दामों चीज़ों फ़रोख्त करने वालों को पकड़ा जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने इस ज़ाहिर पर जो है रमज़ान बाज़ार उसका विज़िट किया है और मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ पर आकर और देख कर के काफ़ी डिसिप्लिन से इन्होंने चीज़ें मैनेज की हुई हैं और मार्केट की निस्बत काफ़ी सस्ती कीमत पे जो है यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। आटा, चीनी वाफर मिक़दार पे अवेलेबल है। लोगों से मैंने फ़ीडबैक भी ली है, अभी तक लोग जो हैं वो दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड। इसके अलावा फल और सब्ज़ी जो है वो भी क्वालिटी वाइज भी बेहतर है और मार्केट से सस्ती प्राइस पे मिल रही है। आई होप कि इसी तरह रमज़ान बाज़ार में जो आने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी जो है मज़ीद पैदा की जाएगी। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आम मार्केटें हैं रमज़ान बाज़ार के अलावा उनमें आपकी तरफ से जो है वो क्या इक़दाम किए गए हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या फिर आंदोलन के खिलाफ या चीज़ें सही रेट पर मिलने के लिए? देखिए, रमज़ान से पहले हमने अपनी एक मीटिंग की थी जिसे प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें हमने कोशिश ये की थी कि जो पिछले साल जो मार्केट प्राइस थी जो हमारे नोटिफाइड आइटम्स होते हैं उनमें से तकरीबन 80% जो हमारे नोटिफाइड आइटम्स हैं इस दफ़ा रमज़ान के लिए मार्केट प्राइस जो है वो पिछले रमज़ान की निस्बत या तो कम है या उसके बराबर है। 3-4 आइटम्स ऐसे हैं जो दालों की आइटम्स हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है 10-20 रुपए का, लेकिन महंगाई के हवाले से बाकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सस्ती हैं।